फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ 8 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੋ ਬੈਚ ਆਨਗੋਇੰਗ ਨੇ, ਦੋ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 8 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਨਗੋਇੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST, ठीक है जी। सैकेंड बैच ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SCC SST ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਆਪਾਂ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ, ਉਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੈਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। शुरुआत करते हैं जी आप अपने इस सेशन ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, Facebook Instagram ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ Telegram ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ऑफिशियल ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलियो क्योंकि कंटेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ वेरियस पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स ਨਾਲ वेरियस एग्जाम ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9111500017 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, रोज ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने WhatsApp ग्रुप ज्वाइन किया है, कल वाले पोल से अंदर उन्होंने क्वेश्चन किए सी, कईयां दे आंसर सही सी, कईयां दे गलत सी। तो पोल करन तो पहला उस दिन वाला सेशन जरूर देख लिया करो क्योंकि वो पोल दे क्वेश्चन जो उसे सेशन के अंदरों ही होंगे ने। जे सेशन देख के तुसी पोल वाले क्वेश्चन करोगे तो 100% तुसी सारे क्वेश्चन करेक्ट करोगे, ठीक है जी। तो अज दे क्वेश्चन करन तो पहला अज दा सेशन जरूर देख लियो। आ तुहानू पता ही है जी कंप्लीट कोर्स सारा आ मैं बार-बार दस के टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहती। बढ़ते आप अपने अज दे सेशन वाल। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕੱਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। हाँ जी, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। एक गल और मैं तुहानू कल भी दस्सिया सी, तुसी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करके जाया करो, कमेंट जरूर करिया करो। तुहानू मैं कह रही हां जेड़ा स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करेगा, जेड़ा स्टूडेंट रेगुलर वीडियो के अंदर कमेंट करेगा, तुसी भावें बाद से सेशन लगा रहे हो, पहला लगा रहे हो, प्रीमियर लगा रहे हो, जिवें भी है, जेड़ा कमेंट करेगा ਅਸੀਂ चेक करांगे ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ रेगुलरली क्लास ज्वाइन कर रहा है, क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ एक्टिव है, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ। डायगनल मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायगनल मैट्रिक्स? ਇਹ डायगनल मैट्रिक्स ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ डायगनल एलिमेंट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैट्रिक्स ਦੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायगनल एलिमेंट ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैट्रिक्स ਦੇ डायगनल एलिमेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ डायगनल मैट्रिक्स ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ मैट्रिक्स ਹੈ, फॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਕੋਲ मैट्रिक्स है कोई भी। ਹੁਣ मैट्रिक्स ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 1 4 5 9 6 7 1 2 3 ਆ मैट्रिक्स है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ a i = j ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ aij element is said to be diagonal element, is said to be diagonal element if I equal j। I equal j कितने जी? आ आपने कॉल किया जी a11, सेकंड जी आ किया जी a22 ते आ किया जी a33। I ओ सॉरी आ वाला
आ के जी A33 कहना मतलब आ वाले एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ एलिमेंट ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ एलिमेंट ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ एलिमेंट ਨੇ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ एलिमेंट ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 6 ਐਂਡ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ एलिमेंट ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗੋਨਲ एलिमेंट ਹਨ डायगोनल एलिमेंट लिखी होता है जी I इक्वल J कंडीशन की याद रखनी है तुसी I इक्वल J जो है जी डायगोनल I इक्वल J वाले एलिमेंट जो होंगे वो होंगे जी डायगोनल एलिमेंट होंगे कहने का मतलब जिन्ने नंबर रो है उन्ने नंबर ही कॉलम हुए तो वो एलिमेंट की होगा जी डायगोनल एलिमेंट होएगा इस तो इलावा एक होता है जी अपने को कॉन्जुगेट एलिमेंट वो भी दस देनी है की होता है हाँ जी कॉन्जुगेट एलिमेंट बारे भी दस देनी है किसनों आप कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट हाँ जी कॉन्जुगेट एलिमेंट साडे कोल की हुंदे अपने कोल फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है आप मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख लेने 3/3 दी A11 A12 A13 आई हुंदा जी A21 A22 A23 A31 A32 A33 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ AIJ ਤੇ AJ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ IJ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ JI ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ A12 ਤੇ 12 ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 21 ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਨੇ A12 A21 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A13 A31 की ने आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट ने इस तरह A23 A32 आपस में की ने कॉन्जुगेट एलिमेंट हैगे ने इन्हां एलिमेंट्स ਨੂੰ कॉन्जुगेट कहते हैं ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ IJ ਜਿਹੜਾ JI ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੁਕੋ मैं तो दसिया आ वाले अपने को डायगोनल एलिमेंट है तुसी कहोगे आ भी डायगोनल बनते तो ए भी डायगोनल एलिमेंट होंगे बिल्कुल गलत है जी ए तीनों डायगोनल एलिमेंट नहीं है कि ने डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी की है जी I इक्वल J होना चाहिए है जेड़ा कि इत्थे नहीं है तो इन्हां एलिमेंट्स नु डायगोनल नहीं कहांगे ए तीन एलिमेंट ही अपने को इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट हैं हां जी नेक्स्ट देखते हैं हुण आपां चलदे हां डायगोनल मैट्रिक्स की हुंदा है डायगोनल मैट्रिक्स दी अपने को की डेफिनेशन है लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स हाँ जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुन मैं तो पहले ही कह के चली सी कि आगे वाले मैट्रिक्स लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स said to be diagonal matrix if aij equal 0 where I does not equal to j किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ aij ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ij ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ 0 ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਆ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ 0 ਹੋਣ ਸੌਰੀ 0 ਹੋਣ बाकी सारी एंट्रीज की होने जी 0 तो आ अपने को केड़ा मैट्रिक्स बनेगा जी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा केड़ा मैट्रिक्स बनेगा जी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन की है कि aij 0 होना चाहिए है जिथे ij दे बराबर ना होवे जे ij दे बराबर नहीं है तो वो अपने कोल ते ओ एलिमेंट 0 ने तो क्या जी डायगोनल मैट्रिक्स अपने कोल केड़ा जी डायगोनल मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स की है जी साडे कोल हुन डायगोनल मैट्रिक्स बन गया हुण जे ऐसे मैट्रिक्स की जगह मैं एवें लिखदा 1 2 3 0 0 -1 0 0 0 कि यह मैट्रिक्स डायगोनल होएगा बिल्कुल नहीं होएगा क्यों क्योंकि हर एक aij 0 होना चाहिए जे ij के बराबर नहीं है पर इत्थे -1 बन चुका है तो आ मैट्रिक्स अपने को डायगोनल मैट्रिक्स कदे भी नहीं होएगा कदे भी इस मैट्रिक्स में आप डायगोनल मैट्रिक्स का नाम नहीं देवांगे ठीक है जी
उम्मीद करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, कंडीशन बारे पता लग गया होगा। की कंडीशन होती है कि Aij इक्वल 0 वेयर I डज नॉट इक्वल टू J। ठीक है जी, I J ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਹੁਣ ਡਾਇਗੋਨਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ is said to be scalar matrix is said to be scalar matrix if its diagonal element j उससे diagonal element equal नहीं, if its diagonal entries are equal। ठीक है जी, कि ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 3x3 ਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, 0, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ठीक है जी, की कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हुण देखो A00 A0 आपने कोल की है जी एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। हुण एग्जाम से की क्वेश्चन बन सकता है, पेपर से तुहानू कह देन इफ A इज स्केलर मैट्रिक्स, if A is scalar matrix, कहता है A एक scalar matrix है where A देता अपन A1 A 0 0 0 0 0 0 अपन एक मैट्रिक्स देता कि आ कहना स्केलर मैट्रिक्स है, A दी वैल्यू पता करो। हुण क्वेश्चन दे अंदर की क्या है कि स्मॉल a दी वैल्यू पता करनी है, आ एक स्केलर मैट्रिक्स है। दोबारा लिख देनी है मेरे को साफ करके कि क्वेश्चन कह दे इफ A is scalar matrix, if A is scalar matrix where A अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ A00 010 00 A, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ A, देन फाइंड वैल्यू ऑफ A। ਹੁਣ कहते हैं वैल्यू पता करो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ A। स्मॉल a दी वैल्यू पता करो, स्मॉल a दी वैल्यू कितनी होगी, तो दसो दी कमेंट सेक्शन में कितनी होगी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि स्मॉल a दी वैल्यू साडे कोल कितनी होएगी, एस a दी वैल्यू कितनी होएगी। तो देखो जी एस a दी वैल्यू साडे कोल कितनी होएगी जी, 1 होएगी। क्यों होएगी 1, क्योंकि एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स दी डायगोनल एंट्रीज बराबर होंदियां ने, एदा मतलब a 1 दे बराबर होएगा, तो इस दी वैल्यू कितनी होएगी जी, 1 होएगी। ठीक है जी, इसे तरह बहुत सारे क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। इतने अपन a प्लस सी दे दे 0 0 0 कोई भी क्वेश्चन बनवा सकते हो। आ देता 5, ठीक है, इतने देता a -3। हुण कह दें कि a दी वैल्यू पता करो, c दी वैल्यू पता करो, जिस दे लिए स्केलर मैट्रिक्स है की है, आ एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो a ते c दी वैल्यू पता करो। तो अपन पता है जी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज बराबर होंदियां ने। इत्थों अपने को a दी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो c दी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, c दी वैल्यू अपने को फिर कितनी आऊगी, -3 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन पेपर से पूछा जा सकता है। एक मैट्रिक्स दे के उहदे अंदर एंट्रीज पा के पूछ लेंगे कि a दी वैल्यू पता करो जी, स्केलर मैट्रिक्स है।
हाँ जी नैक्सट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी नाम सुन तो तुहाडे दिमाग च आया जी कोई यूनिट एक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स नो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its diagonal entries are 1। जे इस दी डायगोनल एंट्रीज की होन, जे दी सारी डायगोनल एंट्रीज की है यूनिटी होन, या फिर आप लिख दें 1 और यूनिट लिख देंगे। ठीक है जी। जे इस दी सारी डायगोनल एंट्रीज यूनिटी होणगियां तो उन्होंने की कहांगे जी आपां आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहांगे। की कहांगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहांगे। तो इसनों आई नाल डिनोट करते हाँ, पता ही होगा तुहानू। आ 2/2 का बनाना है तो देखो डायगोनल एंट्रीज यूनिट करता, आ की है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या फिर 3/3 का बनाना है, आई 3 लिखांगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आ अपने को की है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बहुत कम आने वाले अगे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज काफी होने वाला है, तो इन्हों तुसी याद रखना है। जिस दियां डायगोनल एंट्रीज 1 होण उन्होंने की कहांगे आपां आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहांगे। की कहांगे आइडेंटिटी। हुण इहदे अंदर भी क्वेश्चन पूछ दे सकदे हैं अपन को डायगोनल दी जगह a - c a + b b - c एवं इक्वेशन दे दे, बाकी 0 दे दे, कह दे कि a b c की वैल्यू पता करो। तो अपन को पता है a - c भी 1 होएगा, a + b भी 1 होएगा, b - c भी 1 होएगा। इन तीनों इक्वेशनां सोल्व करके आप a b c की वैल्यू कढ लांगे। तो एग्जाम से इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी कि यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो फिर तुसी इन्हां दे अंदर a b c की वैल्यू पता करो। तो आ सी जी अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हुण नेक्स्ट टाइप आ जांदी है जी अपने को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। की आंदा जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉरी। हुण ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हुंदा साडे कोल, देखो ट्रायंगल पता कि इस तरह की अपने को ट्रायंगल हुंदी है जी। आ अपने को ट्रायंगल की शेप हुंदी है, बहुत सारी शेप्स दी हुंदियां ने, इस तरह अपने को शेप दे अंदर ट्रायंगल हुंदी है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होगा जिस मैट्रिक्स के अंदर तुहानू एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे जे, जिस मैट्रिक्स के अंदर थल्ले या ऊपर तुहानू एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे जे, वो अपने को की होगा जी, वो अपने को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। की होगा जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। हुण तुसी कहोगे मैम किवें ट्रायंगल किवें बनते दिखाई दे, तो आपां दस दिया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहला दस दिने दो तरह हुंदा, एक हुंदा लोअर ट्रायंगुलर, एक हुंदा जी अपर ट्रायंगुलर। जदों मैट्रिक्स अंदर तुहानू ट्रायंगल बनी दिखाई दे जवे तो वो अपने को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल नाल लिख के तुहानू हुणे दसा देनी। हाँ पहला आप देख लेंगे जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल नाल देखेंगे तो तुहानू पता लग जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be lower triangular if aij equal 0 where कदों होण, कदों aij 0 होण जदों जेड़ा है जी i अपने को लेस देन j होवे, i इज लेस देन j। हुण आ कंडीशन याद रखनी है, आ कंडीशन तुहाडे माइंड 'च याद होनी चाहिए है कि कोई भी मैट्रिक्स नू लोअर ट्रायंगुलर कदों कहांगे जदों उसदी aij एंट्री 0 होएगी। कदों 0 होएगी? जदों i j तो छोटा है। i j तो छोटा मतलब कि रो छोटी है। हुण आपां मैट्रिक्स बनांदे हैं लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है जी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनांदे हैं। अपने कोल की है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इहदे अंदर देखो मैट्रिक्स अंदर थल्ले ट्रायंगल बन रही है ना एलिमेंट्स दी, ऊपर दा 0 है। अपने कोल की है जी थल्ले एलिमेंट्स दी ट्रायंगल बन रही है, तो अपने कोल केड़ा है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर 0 नहीं। इन्होंने की कैसे i j तो छोटा होना चाहिए। हुण i j तो छोटा होना चाहिए। आ क्या 1 2 है, आ क्या 1 3 है। i j तो छोटा है, i j तो छोटा है। आ क्या जी 2 3 है, i j तो छोटा है। तो aij एंट्री 0 है ते i j तो छोटा, तो केड़ा मैट्रिक्स है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिस दे अंदर थल्ले ट्रायंगल बन रही है, ऊपर की एलिमेंट सारी की ने 0 हन।
ਉੱਪਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 0 ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। देखो ਹੁਣ डेफिनेशन की बनेगी जी, डेफिनेशन बनेगी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if aij equal 0, aij 0 के बराबर हुए where I is greater than j, I j तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। I ਕੀ ਹੈ ਜੀ j ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, I j ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 1 4 7 9 6। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रायंगल कितने बन रही है ऊपरले पासे बन रही है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ऊपर वाली साइड ट्रायंगल बन रही है तो अपर ट्रायंगुलर हो गया। थल्ले वाली साइड से अपने को ट्रायंगल बन रही है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जी। ठीक है जी, जो थल्ले ट्रायंगल बन रही है तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर बन रही है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, उसमें क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है I is greater than 0, aij equal 0 where I is greater than j। ते aij equal 0 जे I less than j है तो लोअर ट्रायंगुलर है, I ਵੱਡਾ है तो अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है जी। हाँ जी, एक चीज और दसदा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ if aij equal 1 ਜਾਂ 0। आई ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂटिटी ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ। 1 ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ when I equal j, ਜਦੋਂ I j ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ when I does not equal to j। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ which of condition is show ਆਇਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ aij ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ। 1 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ I ਤੇ j ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤੇ I ਤੇ j ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂटिटी मैट्रिक्स बनता है। याद रखियो केड़ा मैट्रिक्स बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। हाँ जी, तो हम आप देखिए सी लोअर ट्रायंगुलर ते अपर ट्रायंगुलर समझ आ गया होगा। तो अपर ट्रायंगुलर की हुंदा है ते लोअर ट्रायंगुलर की हुंदा है। हुन पेपर दे अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोअर ट्रायंगल ते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो केड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो दस देने तुहानू। पेपर दे अंदर क्वेश्चन आ जे चाहे अपर लिखे चाहे लोअर ट्रायंगल लिखे, how many या फिर कह दें सॉरी ऐसे लिख दिया मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कि कोई n ऑर्डर दा चाहे लोअर ट्रायंगुलर ले लो चाहे अपर ट्रायंगुलर ले लो, दोनों चो एक तरह का मैट्रिक्स है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए ने, किन्ने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे आ पूछ लिया जाए। जिवें कि अपने को 3/3 दा 3/3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬਣਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ n ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ n ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n/n ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ, ਦੈਨ ਨੋ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ nth ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਟਾਏਗੀ ਨਾ, ਆ ann है। आप गिनती करते हैं जीरो की,
पहली रो के अंदर कितने ने 0, दूजे के अंदर 1 0 है, अगे 2 है, तीजे के अंदर तो nवीं रो के अंदर कितनी जीरो होनी जी n-1 कितनी होनी जी n-1 होनी। तो हम इन्हें पूछा घट्टो घट कितनी होनी तो घट्टो घट तो इन्हें सारे जोड़ देंगे, इन्हें सारे जोड़ देंगे तो अपने को की बन रहा है 1 + 0 है पहला चलो 1 + 2 + n-1 आके इन्हें सारे नेचुरल नंबर ने 0 तक जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, भूल जाओ क्योंकि 0 की कोई वैल्यू अपने को है नहीं। 1 तो लेके आ नेचुरल नंबर नहीं 1 तो लेके नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं ना n-1 तक जा रहे हैं। तो पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर की होता है प्राकृतिक संख्यावां दा जोड़ की होता है। प्राकृतिक संख्यावां दे जोड़ दा फार्मूला की होता है पहलियां n प्राकृतिक संख्यावां दे जोड़ दा फार्मूला की होता है जी n × n + 1/2 आई होता है। कोई शक है अंदर n × n + 1/2 होता है। तो अपने को इत्थे n दी जगह की है जी n-1 है तो n दी जगह n-1 इत्थे पुट करांगे तो आ की बनेगा फार्मूला प्रूफ करके दिखानी है तुहानू आ बनेगा n-1 × n/2 की बनेगा n-1 × n/2 बनेगा अपने को। ठीक है तो याद रखियो किसी भी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अंदर किसी भी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अंदर तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ लें की पूछ लिया जाए जी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ लेना जाए तो उसका फार्मूला की होता है जी n-1 × n/2 अगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं है n-1 × n/2। ठीक है जी अपने को फार्मूला होता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कढण दा नोट कर लियो जी। जे हुण तुसीं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन दे अंदर कमेंट करके दसो एक मैट्रिक्स है जी जिसका ऑर्डर है तुहाडे कोल 7/7 दे ऑर्डर दा मैट्रिक्स है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी होनी जे अपर ट्रायंगुलर है जे अपर ट्रायंगुलर है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होनी है। कमेंट सेक्शन से कमेंट जरूर करियो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दियो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7 ऑर्डर का एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अंदर घट्टो घट कितनी जीरोस होणगियां इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन से करना तुसी सारे ने। हाँ जी तो जे मैक्सिमम पूछ लेन फिर जे कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम कितनी होंगे जी सारे एलिमेंट ही जीरो हो सकते हैं सारे दे सारे एलिमेंट ही जीरो हो जान तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जी जिन्ना उन्हां दा ऑर्डर है n² ऑर्डर दी स्केयर होएगी। ठीक है जी n² होएगी जी मैक्सिमम पूछ ले जाए लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर दे अंदर मैक्सिमम पूछे तो n² मिनिमम पूछे तो n-1 × n/2। ठीक है जी हुण आई क्वेश्चन जे कह दें आही क्वेश्चन कह दें कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अपन कह देना डायगोनल मैट्रिक्स है ਇਹਦੇ अंदर पूछ लेन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी होनी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ लेन तो देखो जी अपन पता है डायगोनल मैट्रिक्स का कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स की होता है जी लोअर ट्रायंगुलर ते अपर ट्रायंगुलर दोनों जोड़ देंगे तो अपने को डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछन तो कितनी होंगी देखो आप फार्मूला लगा देंगे अपर ट्रायंगुलर के अंदर कितनी जीरो होंगी ने n-1 × n/2 इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर से घट्टो घट कितनी होंदी है जी n-n × 2 आई होंदी है ने मैं तुहानू कहा सी चाहे लोअर होवे चाहे अपर होवे सेम फार्मूला है तो ये लोअर भी है अपर भी है तो ये मतलब जिन्नियां लोअर नु मिनिमम चाहिए ने वो भी जीरोस होनी चाहिए ने जिन्नियां अपर नु मिनिमम चाहिए ने वो भी होना चाहिए ने दोनों नु जोड़ देंगे तो डायगोनल के मिनिमम आ जाएंगे तो इन्हां नु जोड़ांगे तो अपने को की बन जाएगा जी आ दो बार होंगे आ बन जाएगा 2n × n-1/2 2 नाल 2 कैंसिल होके n-1 × n अपने को फार्मूला बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स दिया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कढन दिया डायगोनल मैट्रिक्स दिया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस करनी है तो की फार्मूला है जी n × n-1 जिसमें आप लिख सकते हैं n² n वेस नु लिखा जा सकता है। ठीक है जी उम्मीद करते हैं तुहानू समझ आ गया होगा जे समझ आ गया तो थम्स अप दा साइन जरा कमेंट सेक्शन से जरूर कमेंट कर दो जी। हाँ जी तो आ सी जी अपने को कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुण आपां देखते हैं मैट्रिक्स दी प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन है तुहाडे लई कमेंट सेक्शन से कमेंट करके दस्सियो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स कितनियां होंगियां कमेंट सेक्शन से इसका कमेंट करियो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी हुण आपां मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं एडिशन करांगे मल्टीप्लिकेशन करांगे सबट्रैक्शन बारे पढ़ांगे
ਤੇ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ट्रांसपोज ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਦੋਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋੜਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਦੋਂ ਜੋੜਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ 3/2 ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ 2/3 ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਨੋ, ਇੱਕ 3/3 ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ 3/3 ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, प्लस करना है इस नाल, तो सेम एलिमेंट सेम नाल होएगा। जिवें कि A11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स से A11 नाल जुड़ेगा, A12 एलिमेंट इस दे A12 नाल जुड़ेगा, A21 एलिमेंट इस मैट्रिक्स दे A21 नाल जुड़ेगा, A22 मैट्रिक्स इस दे A22 नाल जुड़ेगा। तो कितना आएगा जी जोड़ के? 3 ते 1 4। सेम प्लेस वाले एलिमेंट जुड़ेंगे, प्लेस सेम होना चाहिए। 4 ते 2 6, 7 ते 4 11 ते 5 ते 6 11। सेम प्लेस वाले एलिमेंट आपस से जुड़ते हैं, तो इस तरह अपने को मैट्रिक्स की एडिशन होती है। इस तरह दो मैट्रिक्स नूं जोड़िया जाता है। ठीक है जी, कोई भी दो मैट्रिक्स नूं आपां इस तरीके नाल जोड़ते हैं। हुण एडिशन के बारे कुछ प्रॉपर्टीज ने, सब तो पहला नोट कर लो एडिशन बारे। जिहड़ी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, उन्हां दी एडिशन क्यूम्यूटेटिव हुंदी है। फर्स्ट चीज की है कि एडिशन जिहड़ी है इन्हां दी क्यूम्यूटेटिव हुंदी है। क्यूम्यूटेटिव का मतलब की है कि A प्लस B मैट्रिक्स में जोड़ते हाँ तो B प्लस A दे जोड़ते बराबर होता है। A प्लस B जो है जी B प्लस A दे बराबर होता है। कोई मैट्रिक्स ले लेने 1 4 3 2, आ मैट्रिक्स A है। दूसरा ले लेने B 1 7 3 5। हुण इन्हां नूं जोड़ना है। पहला A प्लस B तुहानूं प्रूफ करके दिखा देनी है मैं। आ बनेगा जी 2 11 6 ते 7। फिर आप जोड़ते हैं B प्लस ए। B प्लस ए जोड़ांगे तो पहला B लिख लांगे, फिर A लिख लांगे। तो आ भी की बनेगा जी 2 11 6 7। दोवें की आ रहे ने बराबर आ रहे ने, तो यदा मतलब जी एडिशन होंगी है जी वो की होंगी है जी क्यूम्यूटेटिव होंगी है। की होंगी जी क्यूम्यूटेटिव होंगी है। दूजी गल, पहली प्रॉपर्टी तो होगी एडिशन दी कि मैट्रिक्स की एडिशन साडे कोल हमेशा क्यूम्यूटेटिव हुंदी है। ठीक है जी। दूसरा, मैट्रिक्स की एडिशन एसोसिएटिव हुंदी है। एसोसिएटिव नु प्रूव करके नहीं दिखावांगे, तुहानू पता ही है, बचपन तो सीखते आ रहे हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव का मतलब की है कि कोई भी अपने कोल तीन मैट्रिक्स ने, तो A प्लस B नु जोड़ के जे C दे अंदर जोड़ोगे तो वही जोड़ अपने कोल A प्लस B प्लस C दे बराबर होएगा। कहने का मतलब तुहाडे कोल तीन मैट्रिक्स ने 1 2 3 4 2 1 3 5। ठीक है, आ मैट्रिक्स A है, आ मैट्रिक्स B है, आ मैट्रिक्स C लिख लिया 3 4 6 7। तो की कह रहा है कि इन्हां दोनों को जोड़ के ओदे अंदर C जोड़ांगे तो इन्हां दोनों को जोड़ के उन्हां अंदर A जोड़ांगे उसके बराबर है। आ प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करती है कि A प्लस B प्लस C किस दे बराबर होगा जी? A प्लस B प्लस C दे बराबर होगा। इन्हां दी जिहड़ी है एडिशन की है जी एसोसिएटिव हुंदी है। तीसरी प्रॉपर्टी की है जी, तीसरी प्रॉपर्टी की अपने कोल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिव आइडेंटिटी का मतलब कि आइडेंटिटी नाम आ गया तो पता लग जाना चाहिए कि आइडेंटिटी का नाम आ गया इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गल हो रही है। आइडेंटिटी नाम आ गया इसका मतलब की है कि आपा की है इस दे अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस हुंदी है, एडिटिव आइडेंटिटी दी एग्जिस्टेंस हुंदी है।
किवें जी की कदों कहांगे देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब की है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਤੇ a ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਤੇ a ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੋੜਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ a ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ a ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ a ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ करती है जीरो मैट्रिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨਵਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ इनवर्स बारे आप आगे गल करांगे पर एडिटिव इनवर्स बारे तो उन्होंने मैं दस देनी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होएगा कि अपने को कोई भी मैट्रिक्स है ए है कोई भी मैट्रिक्स ए है ठीक है तो ओथे एक मैट्रिक्स क्या है डेफिनेशन दस देनी है आप तो लिखवा देनी है लेट ए बी ए मैट्रिक्स of order m into n then there exists a matrix B या फिर X ले लेना a matrix X of same order के अंदर कि सेम ऑर्डर दा एग्जिस्ट करेगा such that की होएगा such that a plus x अपन की देवेगा जी 0 देवेगा a plus x की देवेगा जी 0 देवेगा अपन पता है क्यों मेरे तो होंगे इसलिए दोनों पास लिख दे कि इस तरह का मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें इस अंदर जोड़न नाल की है जी 0 आएगा क्या आएगा जी 0 आएगा तो इस दे एलिमेंट किस तरह दे होंगे देखो x दे एलिमेंट किस तरह दे होंगे जी माइनस टाइम ऑफ a दे एलिमेंट जे a दे एलिमेंट a i j दी शेप रूप दे है ना ਆਪਾਂ दो मैट्रिक्स मान लेने a दे एलिमेंट है a i j दे वर्गे ते x दे एलिमेंट है आपने को x i j वर्गे ठीक है जी ਤਾਂ ਆ x ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆ x ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ xij ਹੈ ਜਿਹੜਾ xij ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ ਟਾਈਮ aij ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਬਣੇਗਾ फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 1 4 3 7 हुन कहते हैं इस दा एडिटिव इनवर्स पता करो तो इस दा एडिटिव इनवर्स की होएगा जी इस दे माइनस टाइम दे एलिमेंट होंगे -1 -4 -3 -7 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ जी नेक्स्ट है सारे को सबट्रैक्शन बारे में पढ़ लेने कल आप मल्टीप्लाई बारे करांगे ओही पहली गल ऑर्डर सेम होना चाहिए सब तो पहला दोनों का ऑर्डर की होना चाहिए जी सेम होना चाहिए ठीक है जी तो एडिशन समझ आ गई तो सबट्रैक्शन भी आ जाऊगी जी हाँ जी सब तो पहली गल की है अपने को इन्हां दा ऑर्डर सेम होना चाहिए ते ओही गल जेड़ा एलिमेंट सेम प्लेस ते ओही उस दिन माइनस होगा जिवें 7 5 4 3 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4 ठीक है हुन इन्हां नु माइनस करना है तो सेम प्लेस वाले एलिमेंट माइनस होंगे 7 चो की माइनस होएगा 1 6 5 चो की माइनस होएगा 2 मतलब 3 4 चो की माइनस होएगा 3 मतलब कि 1 3 चो 4 माइनस होएगा कितना आएगा -1 तो इस तरह जी इन्हां दी सबट्रैक्शन होएगी इस तरीके नाल इन्हां दी सबट्रैक्शन होएगी जदों भी आपा डिफरेंस करना है तो इस तरह नाल कीता जाएगा ठीक है जी हां जी तो डिफरेंस साडे कोल इस तरह आएगा डिफरेंस जेड़ा जी क्यूमुलेटिव नहीं हुंदा a - b जेड़ा है b - a दे बराबर नहीं हुंदा a - b डज नॉट इक्वल टू b - a
ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, a ਮਾਈਨਸ b ਜਿਹੜਾ ਜੀ b ਮਾਈਨਸ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਜਿਹੜਾ b ਮਾਈਨਸ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਸਨ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ट्रेस बारे पढ़ांगे ते ट्रांसपोज बारे पढ़ांगे। कल दे लेक्चर दे अंदर आप इन्हां टॉपिक्स दे अंदर डिस्कस करांगे। उन्ने टाइम तक तुसीं इस सैशन नूं जिहड़ा रिवीजन करो, इस सैशन नाल रिलेटेड क्वेश्चन करो ते अपनी तैयारी नूं लगे रहो। देखो तुसीं आ ना सोचो कि अजे नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा फिर भर्ती आएगी, फिर टाइम मिलेगा उदों प्रिपरेशन करांगे, उदों तक टाइम तुहाडा निकल जाएगा। मैं तुहानूं गारंटी नाल कह रही हां जल्दी ही मास्टर कैडर दीयां पोस्टां आउण वालियां ने ते जे तुसीं उन्हां दा फायदा उठाना है, इस बार दी जॉब पक्की करनी है, जे तुहाडा इरादा है कि असीं जॉब लैनी है तो हुणे तो सैशन जिहड़े हुणे तो अपनी प्रिपरेशन जिहड़ी शुरू कर दो। ठीक है जी, क्योंकि देरी नाल शुरू कीता काम कदे भी सही नहीं हुंदा। ते आपदे जिहड़े भी फ्रेंड्स आ उन्हां नाल भी सैशन नूं जरूर शेयर करो ताकि उन्हां दी फायदा हो सके, उन्हां नूं भी नीड है, विदाउट एनी कॉस्ट उन्हां नूं फायदा मिल रहा है। तो किसी नीडी पर्सन का फायदा करोगे तो भगवान तुहाडा ही भला करेगा। इहदे लई वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेडे भी स्टूडेंट्स ने सैशन हुण तक देखा प्लीज़ वीडियो नूं लाइक जरूर करके जाओ ते चैनल नूं सबसक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। हैव ए नाइस डे। बेस्ट विशेज़।